Hello everyone and a very good afternoon to everyone. Now last time we have studied derivatives. As we all know, what is derivative? Derivative is nothing but a slope of tangent at a point. Derivative is nothing but what? A slope of tangent at a point. Now let's just understand the basic applications of derivative. The application of derivatives is briefly divided into 6 parts. This chapter application of derivatives is of 8 marks in your exam. It contains 8 marks in your board's exam, and you can expect generally 3 MCQs, 3 to 4 MCQs in CET, and 1 MCQ based on application of derivative in JEE. This chapter is briefly divided into 6 parts. The first part is tangent. The basic definition of derivative is what? Slope of tangent. We will use slope of tangent in this part. The first part is what? Slope of tangent. The another part is nothing but rate measures, where we will learn different aspect about displacement, velocity and acceleration. S stands for displacement, V stands for velocity, and A stands for what? Acceleration. Very good. Volumetric flow rate means rate of change of volume, that is given by dv by dt. Rate of change of volume, that is given by what? dv by dt. Change in radius is nothing but dr by dt. Change in radius is nothing but dr by dt. And change in height, it is nothing but what? dh by dt. In this formula we should be very good and very strong with what? Mensuration topic. The formula for cylinder, the formula for cones, the formula for sphere. As we all know, what is surface area of sphere? 4 pi r square. What is volume of cone? 1 by 3 pi r square h. What is volume of cylinder? Pi r square h. Yes, very good. What is volume of sphere? 4 pi r square. Let's just hope whatever you are saying, I cannot hear you, but let's just hope whatever you are saying is very good and very right. The third part, in which application of derivative, is approximation. Here you will find the approximate values of the function, such as we know the value of sine 90 degree is what? 1. Very good. Sine 90 degree is what? 1. But do you know the value of sine of 89.5 degree? No. You cannot use log table, or you cannot use calculator. Without the help of calculator and without the help of log table, how will you be able to solve this? We can use direct formula based on derivatives. Without using calculator or without using log table, we can find the approximate values of sine of 89.5 degree. Similarly, we know the value of 1045 degree. What is the value of 1045 degree? The value of 1045 degree is 1. But if we want to calculate the value of 1044 degree, we cannot calculate it without the help of log table or without the help of calculator. But with the help of derivatives, we can find the exact or approximate. It is correct up to 4 decimal. We will find the approximate values of tan of 44 degrees. Yes, we can get the values of such functions in approximation. The fourth part, which is Rolle's theorem in and LMVT. LMVT stands for Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. This Lagrange's term you will hear more in engineering also. This Lagrange's term you will learn more in engineering also. This two part. This is least important. This is not very much important. This is what? Least important topic of application of derivative. The fifth part, which is important, is what? Increasing and decreasing function. This is also important topic. This is very much important in functions. This is very much important in continuity. This is very much important in application of derivatives. This three part, increasing and decreasing functions. I will explain in detail increasing and decreasing functions. And the sixth part, which is very important, is maxima and minima. Is what? Maxima and minima. In this you will get the maximum value or minimum value of any function.
consider a function f of x is equal to x square plus 3x minus 2. This function will definitely have a maximum value, will definitely have a maximum and a minimum value. With the help of some steps in the maximum minima, you will able to calculate the maximum and minimum value of this function. Now the whole application of derivative is divided into this 6 parts. The very first part is what? Tangents. The very second part is what? Rate measures, which is what? Displacement, velocity and acceleration. The third part is what? Approximation. You will get the approximate values of the function. The fourth part is Rolle's theorem and LMVT. The fifth part, increasing and decreasing function. And the last part, which is very important, is what? Maxima and minima. You understood? Now let's just focus on first part, which is what? Tangents. Let's just focus on the first part, which is what? Tangents. Now as we all know that derivative is nothing but what? Slope of tangent. We have discussed this in derivatives, or the chapter differentiation. We have discussed this in briefly, that the derivative is what? Basically derivative is slope of tangent. Now consider this is your x-axis and this is your y-axis. Consider a function. This is a function y is equal to f of x. Consider a function y is equal to f of x, and let's just consider a point P, and I have drawn a tangent at point P for the function. I have drawn what? A tangent at point P for a function, and a perpendicular to tangent and a perpendicular to tangent. This is what? Nothing but what? Any line which is perpendicular to tangent is what? Yes, very good. Normal. I haven't heard it, but let's just assume you have said what is right. This is what? Normal. This is normal. This is tangent and this is what? Normal. Now if I derivate this function, or we can say if I differentiate this function, differentiating the equation of curve, we will get what? Differentiating the equation of curve, we will get what? Slope of tangent. Yes, we will get what? Slope of tangent at point P x1 comma y1 is what? dy by dx at point P. Which point? x1 comma y1. This point is x1 by note a simple note. The point P is the only point. The point P is the only point which lies on what? Tangent, which lies on what? Curve, which lies on what? Normal. Point P, remember people, point P is the only point which lies on tangent, curve and the normal. Point P is the only point which lies on what? Curve, tangent and normal. Now let's just focus on slope of tangent again. Slope of tangent is what? dy by dx at point P x1 comma y1 is equal to, denoted by m. Denoted by what? M. Now if I want to find the equation of tangent, as we know the slope of tangent is m. The slope of tangent is what? M. And the point on the tangent is what? P x1 comma y1. Is the point on the tangent is what? P x1 comma y1. Now we know the tangent is what? Tangent is a nothing but a line. We know a point on the line and we know the slope of the line. By using slope point form, we will be able to calculate what? Equation of the line. And line is nothing but a what? Tangent. So equation of tangent by slope point form, y minus y1 is equal to m into what? X minus x1. Y minus y1. M is nothing but what? dy by dx. dy by dx is into x minus x1. This is the formula to calculate tangent. If we derivate the equation of the curve, we will get what? Slope of the tangent. Remember this, if we derivate the equation of the curve, we will get what? Slope of the tangent. And by using the point, we can find the equation of tangent by what form? Slope point form. Now let's just consider if I want to calculate the slope of normal. How can we calculate the slope of normal? Since normal is perpendicular to tangent, so whatever be the slope of tangent, if I take a reciprocal of it and give a negative sign, we will get slope of normal. Yes or no? Okay, I heard it. Yes. Okay. If I take the reciprocal of the slope of tangent and give a minus sign, we will get what? Slope of normal. Now consider if we want to calculate the equation of normal, what we will do?
since we know the slope of normal, let's just assume it's m dash. Slope of normal is what? M dash will be given by what? Minus 1 upon m. Yes or no? The slope of normal will be what? Minus 1 upon m. Now we know the slope of normal, and also we know a point on the normal, which is what? P. As I said, P is the only point on what? Tangent, curve and normal. We know the point of the normal, we know the slope of the normal, so we can calculate equation of the normal. Yes or no? Okay, I take it as yes. In this way we can calculate the slope of normal and equation of normal. As you can see, I have done this. Y minus y1 is equal to minus 1 upon m x minus x1. Note this, this is very important point. This is very important point. Point P is the point which lies on curve, tangent and normal. Remember this. Now let's just start with the note points of some tangent and normal. Now the very first point, as we all know, derivative dy by dx is nothing but what? Slope of tangent. So this is the first note point. To get slope of tangent, we must differentiate the equation of the curve. To get slope of tangent, we must differentiate the equation of the curve. जो भी कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कर्व का मिल जाएगा. जो भी पॉइंट पे निकालना है वो बाद में सब्स्टिट्यूट करने का. तो बेसिकली कर्व के इक्वेशन को तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स रहता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व. तो नोट पॉइंट नंबर 2, डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व. जैसा मैंने तुमको बोला था, स्लोप के कर्व के इक्वेशन को तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो भी आएगा वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व. तो अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे तुम लोग को अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिएगा तो वो पॉइंट उधर पुट करने का डी वाई बाई डी एक्स में. जैसे कि मैंने थर्ड नोट पॉइंट दिए, to get slope of tangent at point P x1 comma y1 we must substitute point P slope of tangent is equal to dy by dx at point P x1 comma y1. जैसे मैंने बोला था, तुम अगर कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, और डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व. और तुमको कोई स्पेसिफिकली कोई पॉइंट पे चाहिए x1 कमा y1, तुम लोग सिंपली डी वाई बाई डी एक्स में p x1 कमा y1 पुट करने का. तुमको ये मैं डिटेल में बताऊंगा एग्जाम्पल्स में. थोड़ी देर में एग्जाम्पल्स हम चालू करने वाले हैं. फोर्थ पॉइंट ऑफ द नोट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो आया, डी वाई बाई डी एक्स जीरो आया मतलब स्लोप जीरो है, टेंजेंट का स्लोप जीरो. टेंजेंट का स्लोप जीरो, टेंजेंट तो लाइन ही है ना, और अगर स्लोप जीरो आया मतलब लाइन डेफिनेटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के स्लोप होते हैं जीरो. अगर डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी या तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या तो क्या नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या तो नॉट डिफाइंड. अगर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आया तो मतलब स्लोप इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड कब होता है? जब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है. इसका मतलब वो लाइन किसको पैरेलल होगा? वाई एक्सिस को. और वो लाइन मतलब किसका बात चल रहा है? टेंजेंट का, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स किसका होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये चार नोट पॉइंट है. फोर्थ नोट पॉइंट केयरफुली देखना, अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो आया देन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और डी वाई बाई डी एक्स अगर नॉट डिफाइंड आया देन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तुम लोग सब में डिटेल में जाएंगे तो तुमको और अच्छे से समझेगा. फिफ्थ पॉइंट, वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल. तुम टैंजेंट और नॉर्मल का दोनों का इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से. मैंने जब कंसेप्ट टैंजेंट का पढ़ा है उसमें मैंने बताया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैंने एग्जांपल दिया था. टैंजेंट के स्लोप को हम लोग m लेते हैं और नॉर्मल के स्लोप को हम लोग m डैश लेते हैं. ठीक है, तो दोनों में स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द नोट पॉइंट, ये मैंने पहले भी नोट करके दिया है, द पॉइंट एट विच द टैंजेंट इज टू बी ड्रॉन, द पॉइंट एट विच द टैंजेंट इज टू बी ड्रॉन. जैसा हमारा पॉइंट P था, वो एक ऐसा पॉइंट है जो कर्व पे भी लाई करेगा, जो टैंजेंट पे भी लाई करेगा और नॉर्मल पे भी लाई करेगा. हमने डायग्राम बताया था उधर, मैंने एग्जांपल में P पॉइंट बताया था. P पॉइंट इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन द कर्व, विच लाइज ऑन द टैंजेंट, विच लाइज ऑन द नॉर्मल. मतलब तुमको जो भी पॉइंट पे टैंजेंट निकालना है वो पॉइंट टैंजेंट पे भी रहेगा, वो पॉइंट कर्व पे भी रहेगा और वो पॉइंट नॉर्मल पे भी रहेगा. इतना केयरफुली समझना. तो याद रखना ये छः नोट पॉइंट्स. पहला नोट पॉइंट क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है तो तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और किसी को नहीं. इक्वेशन ऑफ किसको? कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और डी वाई बाई डी एक्स रहता है वो होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे. अगर तुमको स्पेसिफिकली कर्व के कोई पॉइंट पे तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट चाहिए
तो उसमें वो पॉइंट सब्सटीट्यूट कर देने का। फिर अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो आया देन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, और अगर डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी आया देन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सेस। खाली एक बात अंडरस्टैंड करो, ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर मैंने तुमको बोला 1,2 पे निकाल तो सिंपली 1,2 डी वाई बाई डी एक्स में पुट कर देने का। एग्जाम्पल से मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और याद रखना टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन तुम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो। स्लोप पॉइंट फॉर्म होता क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और पॉइंट जो पॉइंट पे तुमको टेंजेंट निकालने का है, याद रखना इट इज़ द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन कर्व, विच लाइज ऑन टेंजेंट एंड विच लाइज ऑन नॉर्मल। इतना याद रखना, जो भी पॉइंट पे तुम लोग को टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट तीनों पे लाया होगा, कर्व टेंजेंट नॉर्मल, वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा। इतना केयरफुली समझ के ले लो। अभी मैं तुमको टाइप्स ऑफ सम्स बताऊंगा, टेंजेंट में कौन से टाइप के सम्स आते हैं। नाउ द पार्ट टेंजेंट इज briefly divided into 4 types of sum. Now the part tangent is briefly divided into 4 type of sums. The first part of the tangent, that is type 1. Type 1. Here the equation of the curve is given. Here the equation of the curves will be given and a point at which the tangent is to be find out will be given. You have to find the equation of the tangent. When equation will be given and the point at which tangent is to be drawn will be given. Is to be drawn will be given. Understood? Type 2. Type 2. Here equation or slope of tangent will be given along with equation of the curve, along with equation of curve. You have to find the point at which the tangent is drawn. Type 3. Type 3. Here parametric equations will be given of the curve. Parametric equations of curve will be given. You will have to find equation of tangent and normal with the help of this parametric equations. And the type 4 here typical sums will come under type 4. Typical sums will be coming under type 4. Typical sums like equation of the two curves will be given. You will have to find the angle between the two tangents, angle between the two curves. These are the 4 types of sum which you will come across tangents. Now let's just take an example of type 1. When the equation of the curve will be given and you will have to find the equation of the tangent. Now type 1 sum. Example number 1 of type 1. Here find the slope of the tangent to y square equal to 8x at the point 2, minus 4. Also find the equation of the tangent and normal. Now concentrate properly. What is equation of the curve? Y square
equal to 8x. We know slope of tangent is nothing but dy by dx. We know slope of tangent is nothing but what? Dy by dx. So to get dy by dx, we need to differentiate this function. Differentiate with respect to x. What is derivative of y square? It is 2y, and it is differentiate with respect to x. So instead y का derivative will be dy by dx. Now 8 is constant as it is, and x का derivative is 1. So dy by dx is equal to what? 8 upon 2y. Now we have to find the equation of tangent at this form, at this point. So dy by dx at point 2 comma minus 4 will be equal to what? 8 upon 2 into, instead of y क्या आएगा? minus 4. So this will be what? minus 1. 8 upon minus 8 will be minus 1. So this is what? dy by dx is nothing but what? Slope of tangent. So this is slope of tangent. So slope of tangent, slope of tangent is equal to minus 1 is equal to m. Now equation of tangent, we know slope and we know one point. One point is what? 2 comma minus 4. So equation of tangent will be what? Y minus y1 is equal to m into what? X minus x1. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus point is what? 2 comma minus 4. So minus 4 तो plus 4 आएगा इधर, is equal to m. m की जगह पे क्या? minus 1 and x minus 2. ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. सब टर्म्स को उधर लेके जाओ तो ये क्या बन गया? x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. प्लस 2 इक्वल टू 0. ये है tangent का इक्वेशन. ये है tangent का इक्वेशन. नाउ विल फोकस ऑन व्हाट? हमको नॉर्मल भी निकालने का है. नाउ विल फोकस ऑन नॉर्मल. अभी नॉर्मल कैसे करने का प्रॉपरली देखो. वी नो tangent is always perpendicular to normal. We know tangent is always perpendicular to normal. So slope of normal will be what? Tell me. Slope of normal क्या होगा? माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ tangent. तो स्लोप ऑफ tangent क्या था? माइनस 1. तो ये क्या बन जाएगा? 1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया. और ये 2 comma minus 1. इफ़ यू रिकॉल प्रॉपरली, मैंने बोला था दिस पॉइंट इज द ओनली पॉइंट which lies on curve, tangent and normal. तो नॉर्मल पे भी लाई करेगा. नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, नॉर्मल का पॉइंट पता चल गया. तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन. ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है और ये है एम डैश. और ये हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है. तो y माइनस वाई वन की जगह पे 4 माइनस 4 रहेगा तो ये प्लस 4 हो गया. एम डैश मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 2. अभी सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ, सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाओ. तो एक्स माइनस वाई माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0. ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो ये पहले टाइप का सम था. ये सम है टाइप 1 का. ये कौन सा सम है? टाइप 1. ये टाइप 1 का सम है. अभी टाइप 1 का सम का और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. तो ये एग्जांपल आई गेस सबको समझ गया. अभी टाइप 1 के सम का और एक एग्जांपल लेते हैं. टाइप 1 सम का और एक एग्जांपल. अब ये प्रॉपरली देखो, इफ़ यू रिकॉल इट प्रॉपरली, ये सेम है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व दिया है, बट ये ना इम्प्लिसिट फंक्शन है. एक्स और वाई जहाँ पे मिक्स होता है ना, एक्स और वाई जहाँ पे मिक्स होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. हमने डेरिवेटिव्स में ये किया है. इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन जहाँ पे एक्स और वाई मिक्स रहेगा. तो ये सब सम के साथ डील कैसे करने का मैं तुमको बताता हूँ. एनीवे इम्प्लिसिट फंक्शन होने दो, बट है तो कर्व का इक्वेशन ये. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 अपने को दिया है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 अपने को दिया है. तो इफ़ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x. अभी एक्स वाई का डेरिवेटिव करते टाइम u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा. तो x वैसे रहेगा, y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई वैसे ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, अभी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0। तो अभी dy बाई dx सब साथ में लेना पड़ेगा अपने को, तो ये दो टर्म्स को इधर ही रखो, बाकी सब टर्म्स उधर लेके जाओ। तो ये दो टर्म्स को इधर रखा तो उसमें से dy बाई dx कॉमन है, तो x प्लस 2y वैसे ही रहेगा और dy बाई dx कॉमन आएगा। और ये दोनों टर्म अगर मैं उधर लेके गया, पहले तो माइनस साइन आएगा दोनों के साथ, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। अभी उधर क्या आएगा अंदर 2x प्लस वाई, देयरफॉर dy बाई dx क्या आया माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, ये आया। अभी प्रॉपरली देखना, अभी dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे चाहिए अपने को, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट व्हाट 1,1, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1। अगर मैंने 1,1 इसमें पुट किया तो माइनस साइन तो रहेगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 अपॉन 3 विल बी माइनस 1 है, तो फिर से स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू कितना आएगा -1। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये -1 है तो वो कितना आएगा 1, क्योंकि -1 अपॉन -1 तो वो कितना आएगा 1। तुमको टैंजेंट का स्लोप मिल गया जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, और तुमको नॉर्मल का स्लोप मिल गया जिसको हम लोग m डैश से डिनोट करते हैं। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म तुम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, टैंजेंट का भी निकाल लेना, और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश इंटू एक्स माइनस एक्स वन, नॉर्मल का भी निकाल लेना। ये हो गया सेकेंड टाइप का सम, टाइप 1 का सम के सेकेंड एग्जाम्पल, ये भी टाइप 1 ही है। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स कर दिए टाइप 1 के, अभी टाइप 1 का तीसरा एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट, ये पॉइंट पे निकालने का अपने को -1, -2 टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, वाई इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये अपना कर्व हो गया और ये अपना पॉइंट हो गया जो पॉइंट पे अपने को निकालने का है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो कर्व के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फिर अगर हमने डिफरेंशिएट किया कर्व के इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट। बट अपने को स्पेसिफाई करके दिया कौन से पॉइंट पे चाहिए, -1 का -2, तो मैं इसमें -1 का -3 सब्स्टिट्यूट करूँगा टू गेट स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट -1 -2, तो क्या आएगा 2 इंटू -1 प्लस 4, तो 2 इंटू -1 मिल -2 प्लस 4 बचेगा कितना +2, तो वो 2 आ गया। और dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज व्हाट स्लोप ऑफ टैंजेंट, और स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम किससे नोट करते हैं, m से। ये क्या है अपना स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये क्या है अपना स्लोप ऑफ टैंजेंट, उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग m। अभी टैंजेंट का स्लोप मिल गया और जो पॉइंट पे अपने को टैंजेंट निकालने का होता है, मैंने तुमको बोला था वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, इट इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन व्हाट कर्व, विच लाइज ऑन व्हाट टैंजेंट, विच लाइज ऑन व्हाट नॉर्मल। तो ये टैंजेंट के ऊपर का पॉइंट है और टैंजेंट का मुझे स्लोप मिल गया है, तो वी कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बाय व्हाट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह पे -2 तो ये +2 हो जाएगा, m की जगह पे 2, x माइनस x1 की जगह पे -1 तो वो क्या बन जाएगा +1। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2, तो वो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2। अभी सारे टर्म्स को उठा के इधर लेके आ गए अपन, तो 2x वैसे रहेगा, ये y इधर आके माइनस है और प्लस टू कैंसिल, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट।
अभी टैंजेंट तो मिल गया अपने को, बट क्वेश्चन में और कुछ स्पेसिफाई करके दिया है कि अपने को नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालने का है। तो टैंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। टैंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को कैसे रहता है, परपेंडिकुलर। तो अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट 2 है तो नॉर्मल का स्लोप उसको उल्टा करके माइनस साइन देने का। तुमको पता है एक प्रॉपर्टी m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। स्लोप के प्रोडक्ट -1 होते हैं कब, जब लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। तो टैंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो टैंजेंट का स्लोप है 2, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसको उल्टा करके माइनस साइन दे दो तो -1/2। नॉर्मल का स्लोप होगा -1/2। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपन स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो अगर उसका स्लोप 2 था तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/2। अभी फिर से रिकॉल करो, तुमको नॉर्मल का अगर इक्वेशन निकालने का, तो तुमको पता है नॉर्मल का स्लोप चाहिए और नॉर्मल के ऊपर का एक पॉइंट चाहिए। और याद करो मैंने क्या बोला था, वो पॉइंट P इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन व्हाट, कर्व, टैंजेंट एंड नॉर्मल। ये पॉइंट तीनों पे लगेगा, तो इसमें भी स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 हो गया, -1/2 x +1 हो जाएगा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2y +4 हो जाएगा, और ये माइनस साइन अंदर दूंगा तो -x -1 हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाओ, तो -x इधर आके +x +2y और +4 +1 मिलके क्या बन जाएगा, +5 इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझा। अभी एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 2x² + 3y² - 5 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1,1। तो अभी केयरफुली सुनो, ये फिर से कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ पे x और y मिक्स होता है। ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ पे x और y क्या होता है, मिक्स होता है। तो अभी वापस ये टाइप 1 का ही समय, एट द पॉइंट पूछा तुमको 1,1। तो टाइप 1 के समय में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, 2x² + 3y² - 5 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 इंटू 2x क्या बन जाएगा, 4x। फिर 3 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। एब्सोल्युटली रॉन्ग, 2y नहीं होगा, 2y इंटू dy/dx, क्योंकि ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। तो y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y इंटू dy/dx। तो 3 इंटू 2y बन जाएगा 6y इंटू dy/dx, -5 का 0 तो इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, 4x उधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -4x। और उसको और भी सिंप्लीफाई करूंगा तो dy/dx क्या हो जाएगा, -2x/3y। इतना तुमको समझा, dy/dx क्या हो जाएगा, -2x/3y। ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। बट अपने को ना एक पॉइंट दिया जहाँ पे अपने को निकालने का, एट द पॉइंट, तो वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दिस पॉइंट पता चलेगा, तो वो पॉइंट पुट करूंगा मैं, dy/dx एट पॉइंट 1,1, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1। तो क्या बन जाएगा, -2/3 इज इक्वल टू m। मैंने बोला था ये क्या है, स्लोप ऑफ tangent। दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ tangent। तो स्लोप ऑफ tangent मिल गया -2/3। अभी अपने को स्लोप ऑफ tangent नहीं चाहिए, अपने को चाहिए इक्वेशन ऑफ tangent। तो इक्वेशन ऑफ tangent निकालने के लिए, tangent लाइन ही है, तो इक्वेशन ऑफ tangent यानी लाइन निकालने के लिए तुमको स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। स्लोप मिल गया -2/3, और पॉइंट ये वाला है जो अपने को पता है किस किस पे लाई करता है, कर्व पे, tangent पे एंड नॉर्मल पे। तो वी विल यूज व्हाट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इज व्हाट, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 की जगह पे 1, x1 की जगह पे 1, y1 की जगह पे क्या आएगा 1, और x1 की जगह पे भी क्या आएगा 1। तो y - 1 इज इक्वल टू -2/3 इंटू x माइनस 1। तो 3 इधर भेज दिया मैंने, तो वो क्या बन जाएगा, 3y -3, वो क्या बन जाएगा, 3y -3 इज इक्वल टू -2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, -2x + 2। तो सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3y, और ये -2 मिल के -5 बन जाएगा। तो 2x + 3y - 5 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ क्या, टैंजेंट। ये क्या है,
इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो अभी अपने को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिल गया, बट अपने को और भी क्या निकालने का है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए था। अभी टैंजेंट का स्लोप है -2/3, तो नॉर्मल का स्लोप इसको उल्टा करके नेगेटिव साइन दो, तो -2/3 को उल्टा किया तो 3/2 बन जाएगा नेगेटिव साइन देके, तो क्या बन गया 3/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा 3/2। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म ही निकालेंगे फिर से, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 1, क्योंकि 1,1 पॉइंट है, याद है ना, पॉइंट क्या था अपना 1,1, अपना पॉइंट था 1,1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x माइनस 1। 2 उधर भेज दिया तो 2y माइनस 2 हो जाएगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा। सारे टर्म्स को उठा के इधर लेके आओ, तो 3x वैसे ही रहेगा, 2y उधर आ गया तो -2y बन जाएगा, और -2 इधर है तो +2, -3 + 2 विल बी -1 इक्वल टू 0। ये बन गया, ये कुछ नहीं, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये बन गया अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये भी टाइप 1 का ही एग्जाम्पल था। तो टाइप 1 के हमने 4 एग्जाम्पल कर दिया है। अभी टाइप 1 का और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5th। केयरफुली देखना। टाइप 1 का 5th एग्जाम्पल, find the equation of tangent and normal to the curve x square plus y square minus 3x minus y equal to 0। थोड़ा डिफिकल्ट है। एट द पॉइंट बोला 0,1। अभी केयरफुली देखना, ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएट ध्यान से करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाले, 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाले, 2y dy/dx, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है। तो पहला डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx, माइनस साइन वैसे 3 वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 तो वो नहीं लिखेंगे, और -y का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो वो चला गया। तो अल्टीमेटली 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 3 इक्वल टू 0। बट अपने को पता है स्लोप ऑफ टैंजेंट से तो dy/dx एक साइड पे लेना पड़ेगा। तो dy/dx वही साइड पे रखो, 2y dy/dx, और बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2x, और ये 2y अपॉन में आ जाएगा। तो dy/dx क्या बनेगा, 3 माइनस 2x अपॉन 2y। dy/dx क्या बनेगा, 3 माइनस 2x अपॉन 2y। तो ये जो है ना dy/dx, ये होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। बट अपने को एट एनी पॉइंट नहीं चाहिए, अपने को मेंशन करके दिया कौन सा पॉइंट, 0,1। तो हम इसमें 0,1 पुट कर देंगे। तो dy/dx एट पॉइंट 0,1, तो 3 माइनस 2 इंटू 0 ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, अपॉन 2 इंटू वाई, वाई 1 है, तो 2 इंटू 1, तो ये 3/2। तो ये हो गया m, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 3/2। dy/dx जो भी पॉइंट पे उसको बोलते हैं m। m मतलब क्या होता है अपना स्लोप, वो भी किसका आता है, dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट। क्या आता है अपने को, स्लोप ऑफ टैंजेंट। समझा तुमको। अभी हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो अभी तुमको स्लोप मिल गया है, तुमको पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में तुम्हारे लिए लग रहा हूँ फॉर्मूला खाली याद रखना, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो प्लीज़ तुम लोग कैलकुलेट कर लेना और इसको अपने बुक में नोट कर लेना। अभी हम लोग नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लेगा। अगर ये स्लोप है 3/2, तो नॉर्मल का स्लोप इसका उल्टा करके नेगेटिव साइन देने का। 3/2 का उल्टा मतलब -2/3, मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या आ गया, -2/3। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तुम्हारे लिए रख रहा हूँ मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इंटू एक्स माइनस x1। तो ये टाइप 1 के सम हमारे हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 2 के सम्स बताऊंगा कैसे करने के। ठीक है, थैंक यू।